Start this today's symposium. Sir will be sharing his thoughts on what they work at the forest department, how do they work under social forestry, and we are looking forward to hear from this. Sir. Thank you. Good morning, everyone. I'm going to World Heritage is I think started from Pune, then you went to Satara. Yeah. And now it's like last Like today is the last day. today is the last. So I was requested I think so. by Asmita ma'am and Neha ma'am to share few experience of use of technology in forest department or in conservation of places. So I have tried to brief everything in my presentation. ISTS. Yes. So shall we start this? First, next slide. So forest as a natural wealth, India has around 21% of geographical area as forest, and Maharashtra specifically is considered to be having rich biodiversity, for particularly the Western Ghats, जिसमें Satara भी आता है. Forest work as you have understood, and we all know that forest work as a carbon sink, sequester carbon, biodiversity reservoir, इसमें बहुत सारे अपनी जैव विविधता होती है, livelihood provider, and we consider forests are the lungs of our planet. Now we'll see how technology is helping us in conserving the nature. Next slide. So what should be the more English or Hindi? English also. Yes. So what are the major challenges we deal in forest department is first is man-animal conflict. Suppose animal is coming into the forest is human habitation boundary and there is a conflict between human and animal. For example, ये जो एरिया है पूरे नासिक इसमें लेपर्ड का बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो सिटी एरियाज में आते हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है कि मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि मदर और कब वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से कभी कॉरिडोर्स नहीं मिलता है कंफ्यूज होकर दूसरे एरिया में निकल जाते हैं फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स के बारे में अपन सुनते हैं बियर के बारे में सुनते हैं leopards are there. Third is soil and moisture conservation. For example, to grow forest, we need moisture in the soil. If there is no moisture, so we won't be able to grow trees. Illicit felling is also one of the issue, particularly in the Nashik area because it is bordering Gujarat. So felling and cutting and smuggling of khair wood is there. Teak ka smuggling hota hai. Encroachment forest area is no man's land. Or it is a common property, so it is always prone to encroachment. So it is a very important aspect of forest conservation. And there are data gaps in real-time monitoring of in forest. For example, for if some afforestation has been done, plantation has been done, so we need real-time data to monitor how it is progressing because it is less habitated or no habitated area. Only wildlife is moving in that area. So we need real-time monitoring of what is happening in our forest. So we see the first aspect of man-animal conflict. Some glimpses I have captured so that you can understand the overview, how technology can play a role and can ignite you for more exploration of this field. Next slide. So we are using technology, drones we are using. Artificial intelligence and machine learning we are using for detection of wildlife coming to villages. Internet of Things. We are exploring the feasibility of IoT. For example, if we are establishing hydroponics, aeroponics nursery, which will be controlled by control panels or plantations. हम सोच रहे हैं कि we will continuous weather stations लगा के we will do the plantations.
and as we all know, GIS and remote sensing, which are used for tracking the progress of our forest growth as well as encroachment removal. So next slide. So here we come with the first aspect is man-animal conflict cases to deal with. So हमारे को leopard के issues mainly I have talked about leopard only क्योंकि इस एरिया में ये conflict का part है. तो in conflict with humans तो उसमें issues आते हैं कि road kill हो गया. Suppose wildlife is moving and it is dashed by any vehicle, road kill. Leopard falls into open wells by an accident. Leopard is spotted in open spaces, farmland, inaccessible places. So we have to rescue that leopard. Leopard found in closed spaces, बंद कमरे में कहीं leopard घुस गया. Leopard cubs, जो orphan leopard cubs हमको मिले, ये एक issue है. और leopard found trapped in snare cage, किसी ने उसको wildlife trafficking के लिए उसको capture किया. Next slide. So this is a case study of Nashik district where almost 9 to 10 deaths were done by leopard, and it was during COVID times, and there was a lot of hue and cry from the villages because in the same area leopard was doing almost 9 to 10 deaths in a span of 2 months. So this you can see on the right side there is a pen, and beside this the leopard pug mark. So it is showing the presence of leopard. This is a part of ground truthing. Whatever you are seeing in the machine, you have to go to the field and see what is on the ground. So that is the indirect sign of a leopard. And on left hand side you can see there are 2 leopards. So that is a direct sign of leopard. Next. So there were 9 to 10 deaths. So we tried to use the GIS and remove GIS and this satellite data. In this we have plotted in the red mark there is the pointer. या इस पे दिखा दो, ये रेड जो पॉइंट्स है वहां पे डेथ्स हुई है. These red spots are those where death has occurred, and this blue portion, blue are where there is a case of injury. Death नहीं हुई, injury हुई है. Next. And these were the points जहां पे leopard attack के distances है, aerial distances हमने निकाले हैं from Google Earth use करके. For example, ये जो है और ये जो spot है इसके बीच में 4.9 किलोमीटर का distance है. So we want to know कि whether they are different leopards or same leopard doing this attack. उसके अलावा हमें देखना है कितनी territory में वो घूम रहा है. Next. This so next phase was next point was हमने point पता कर लिया कि कहाँ पे डेथ हुई है. Next step was to install camera traps. Camera traps are the one which traps the images of जो भी उसके सामने जाएगा उसका वो image capture करेगा. So there were 2 camera traps. For example, 2 पेड़ है उसके बीच में 2 camera trap रहेंगे जो उस वाइल्ड लाइफ जो भी मूव कर रहे हैं उसका दोनों साइड कैप्चर करेंगे. So they are installing camera traps. पीछे की स्लाइड करो. ये सारे लोग हमारा फील्ड स्टाफ और some NGOs they are doing the trapping exercise. Camera traps लगा रहे हैं. Next. ये leopard जो है वो we have captured in camera trap. This is just use of technology. इसमें कोई human intervention नहीं है. We दिन के टाइम पे हम कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं, रात के टाइम पे हमको ये इस टाइप के इमेजेस मिलती है. ये दूसरा डायग्राम है जहां पे हमने केजेस और लेपर्ड के अटैक्स को दिखाया. नेक्स्ट. ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमको, हमारे पास कैमरा ट्रैप्स में लेपर्ड्स आ रहे हैं बट वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स सेम लेपर्ड और नॉट. क्योंकि हमको उस लेपर्ड को ट्रैप करना है तो हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये लेपर्ड सेम है कि नहीं. तो देयर आर वेरियस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स. फॉर एग्जांपल ये रोजेट पैटर्न है जो लेपर्ड की, ये रोजेट पैटर्न जो उसके पास बने हुए रोज की तरह जो रोजेट पैटर्न होते हैं वो हम देखते हैं. इसके अलावा कुछ कुछ मार्क्स रहते हैं इसके, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. एंड वी नीड टू ट्रेस आउट कि वेदर इट इज सेम लेपर्ड और नॉट. नेक्स्ट. ये फिर लेपर्ड की ट्रेल की मैपिंग की गई. कैमरा ट्रैप्स में जो लेपर्ड दिख रहा है हमने आइडेंटिफाई किया दिस इज द पर्टिकुलर लेपर्ड व्हिच इज कॉजिंग डेथ. तो वो कहां पे मूव कर रहा है वी हैव फाउंड आउट इन दिस थ्रू दिस पैटर्न. नेक्स्ट.
Now the question is, now the step is to put cages to capture the leopard. तो हमने जो पिछले डायग्राम में जो हमने मूवमेंट जो उसका पाथ ट्रैक किया था कि इसी पाथ पे वो लेपर्ड मूव कर रहा है. सो हम कैमोफ्लेज पैटर्न में, फॉर एग्जांपल दिस इज द केज, और उसके ऊपर हम पूरा कैमोफ्लेज कर देते हैं उसको, जिससे आइडेंटिफाई ना हो दिस इज केज, एंड उसके आगे बेट लगाते हैं. तो उसको बेट को अट्रैक्ट होकर लेपर्ड आता है एंड वी कैप्चर दैट लेपर्ड. नेक्स्ट. उसके साथ साथ this slide I have captured, I have mentioned because beside using the technology we should touch the ground also, है ना. ऐसा नहीं कि आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एंड आपका ग्राउंड का टच छूट जाए. सो आवर स्टाफ इज इंटरेक्टिंग विद द पब्लिक, उनको समझा रहे, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. नेक्स्ट. मीडिया के अंदर आता है, सपोज दिस इज 3 year old गर्ल चाइल्ड which was injured, not इसका डेथ नहीं हुआ था. So then this year was discussing on media. Next. This is another picturization of what we are doing. Cages कहाँ पे लगाए हैं और कहाँ we have put the where death has occurred. Next. This is as in when this injury or death cases are reported, we take victims to the hospital. This is the picture of civil hospital where victims were taken. Next. This is personal visit to victims' family. Government provide wildlife. This is financial assistance also in case of death. In Maharashtra, it's around 25 lakhs if there is death by any wildlife, except snake. Next. Finally, we captured around 15 leopards. At the same spot, 15 leopard को हमने पकड़ा गया. कुछ को आइडेंटिफाई करके we finalize, या हमको ये डिसाइड हुआ कि they are not the one which are causing death, तो हमने वाइल्ड में रिलीज किया और जो भी रेस्पॉन्सिबल थे तो हमने उसको कैप्चर किया. एक दूसरा केस स्टडी है. नेक्स्ट. दिस इज द केस स्टडी ऑफ त्र्यंबकेश्वर. पिंपलत का एरिया है. वहां पर जो पुराना वाला केस था, which हुआ पुराना वाला जो मेथड था ना, that was not succeeding. क्यों? Because we tried putting camera traps. कैमरा ट्रैप्स के अंदर कोई भी ट्रेस नहीं, हमको कोई भी लेपर्ड का हमको साइन नहीं मिल रहा है, एंड वहां पर भी 4 या 5 डेथ हो गई थी. कैमरा ट्रैप्स में नहीं आ रहा. केजेस हमने लगाए, जो भी हमको लग रहा था इस एरिया में लेपर्ड घूम रहा है या रिपोर्टिंग हो रही थी, तो वहां पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया. और बहुत ही जो क्राउड था वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गया था. उनको ये था कि कोई ना कोई इसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा. सो फाइनली वी देयर वाज नो क्लू ऑफ लेपर्ड फॉर नेक्स्ट 12 to 13 days. क्या ना हमारे पास डायरेक्ट साइन मिल रहे हैं ना इनडायरेक्ट साइन मिल रहे हैं हमको, बट लेपर्ड इज देयर वाज साइटिंग. लोग बोल रहे थे कि हमको लेपर्ड दिखाई दे रहा है, बट हमारे किसी ना कैमरा ट्रैप्स में आ रहा है ना केजेस में आ रहा है. इससे हम आगे प्रोसीड करें. सो वी ट्राइड थर्मल ड्रोन हियर. This is the use of, here I am showing the use of thermal drone. You can you play this? इसको एक बार नीचे करो, इसलिए शायद वीडियो है. हाँ, ये प्ले हो रहा है. हाँ. So you can see this leopard is moving. ये आप देख सकते हैं. This is the leopard. So ये हम बिल्कुल रात में, नाइट में हम कैप्चर कर रहे हैं इसको थर्मल ड्रोन की मदद से. And it is very near to our human habitation. तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? हमको ये पता लगा कि लेपर्ड इज प्रेजेंट. सो हमारा जो ग्राउंड पे स्टाफ है, ग्राउंड पे जो हमारी फोर्स है, मशीनरी, वो इट इज नॉट गोइंग वेस्ट. हम सही लेपर्ड को ट्रैक कर रहे हैं. सपोज लेपर्ड ने अगर टेरिटरी छोड़ दी, इट हैज मूव्ड टू अनदर एरिया, सो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड एफर्ट. बट बाय दिस वन इमेज वी गॉट टू नो कि लेपर्ड इज देयर एट द साइट. नेक्स्ट स्लाइड. इसको भी प्ले करो. यहाँ पे ये लेपर्ड मूव कर रहा है. हियर इज अ वेल, ये ट्री है, और ऑन राइट साइड इज ए ह्यूमन हैबिटेशन. तो वो शायद नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, वो ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ भाग रहा है. सो आप देखिए कैसे टेक्नोलॉजी का यूज आपके काम को आसान या राइट डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स को मूव कर सकता है अगर उसको करेक्टली यूज करेंगे तो. नेक्स्ट. ये तो शायद सेम ही है.
नेक्स्ट, दिस इज द ह्यूमन हैबिटेशन, वो आप देख सकते हैं ड्रोन में, और ये लेपर्ड उसकी तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। हाँ, नाउ नेक्स्ट थर्ड जो मैं केस स्टडी बता रहा हूँ, इससे अनदर एरिया ऑफ इंटरवेंशन इज मदर कब रियूनियन। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सपोज मदर के साथ कभी कभी फॉर एग्जांपल दे लिव इन शुगर केन फील्ड, तो उसमें शुगर केन फील्ड पे जैसे ही आपने शुगर केन काट रहे, आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मदर सपोज जैसे ही ह्यूमन क्लोज आए वो दूर निकल गई वो, और कप्स वहीं पे छूट गए, एंड शी गेट्स कंफ्यूज कि मेरे एक्चुअली कप्स कहाँ है, क्योंकि वो तो दूर जा चुकी है, तो उसको पता नहीं है कि हम मेरे कप्स कहाँ पे रह गए। और कोई कोई बहुत सारे अलग केसेस होते हैं जिसके अंदर कप्स और मदर जो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सो हमारा काम क्या है, उसको रीयूनाइट करना। उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर इस कप को उसकी मदर से नहीं मिला हमने, तो कप मे नॉट लर्न हाउ टू हंट। उसको पूरा जो भी एक लेपर्ड बनने के लिए जो भी चाहिए ट्रेनिंग, वो मदर ही प्रोवाइड करती है, तो देयर इज नो सोर्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर दैट कप। he will be that leopard will be orphaned, the cub will be orphaned for lifetime, and that cub may learn to attack on humans. वो ये ना वाइल्ड लाइफ को अटैक करने के बजाय या अनगुलेट्स को अटैक करने के बजाय वो ह्यूमंस को अटैक करेगा, इट बिकम्स क्रिटिकल फॉर अस। ऐसे भी केसेस है, सपोज आपने सॉलिड वेस्ट है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन वेस्ट, ये मीट वेस्ट है, मीट वेस्ट आप होटल इंडस्ट्री वो बाहर फेंक देती है, और सपोज देयर आर वेरियस होटल्स ऑन द रोड साइड, तो उन्होंने वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया और वेस्ट को बाहर ही फेंक दिया, तो इट अट्रैक्ट्स लेपर्ड, इट अट्रैक्ट्स डॉग स्पेसिफिकली, एंड लेपर्ड का फेवरेट फूड है डॉग। तो जैसे ही डॉग आएगा तो उसको देख के लेपर्ड आएगा, और सपोज देयर इज अ व्हीकल गोइंग, तो वो लेपर्ड जब दूसरी साइड से आ रहा है तो वो कभी कभी डैश हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि उसके जो कब्स है जिसके वो खाना लेके जा रहे हैं वो ऑर्फन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड करो, तो ये केसेस रहते हैं हमको। सो हम इसके अंदर जैसे शुगर केन फील्ड में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट किया है। ये जो बास्केट है इसके अंदर हम कप को रखेंगे, जिससे कप इधर उधर मूव ना करे, कब मूव ना करे यहाँ पर, और उसके सामने हम कैमरा लगाते हैं और कैमरा लगा के हम देखते हैं। सो दिस इज डे व्यू जब पीपल आर वर्किंग उस साइड पे, एंड दिस इज द नाइट व्यू ऑफ द सेम एरिया वेयर लेपर्ड हैज एक्चुअली कम उस एरिया में। नेक्स्ट स्लाइड, इसको प्ले कर सकते हो। इसके अंदर देखेंगे तो वो एरिया पे आया है लेपर्ड, एंड वो अपने देख रहा है वो यहाँ पर, और वो कब को लेके जाए। ये देखिए कब को लेके गया वो उसके। नेक्स्ट स्लाइड, ये भी ये केसेस आप देख सकते हो कि लेपर्ड को हमने इनडायरेक्टली कैसे, ये दिस इज अ ट्रैप केज, जब हम उसको कैप्चर करते हैं तो ये लेपर्ड जो है अंदर घुसा है, दे आर वेरी स्मार्ट, इट इज नॉट वेरी इजी टू कैप्चर देम। ये बिल्कुल अंदर घुसा है लेकिन उसके बाद बाहर निकल गए लेपर्ड विद कब। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। सो अनदर एस्पेक्ट जो और मैंने एक एरिया जो चूज किया है, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। हाउ कैन वी यूज द टेक्नोलॉजी इन द सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन को। तो हम जो है अपने रिमोट सेंसिंग डेटा को, सैटेलाइट डेटा को यूज कर सकते हैं फॉर ड्राइंग आउट द ड्रेनेज पैटर्न कि पानी कैसे फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज द एरिया इन नानाशी विलेज ऑफ नाशिक। सो एक कैचमेंट एरिया लिया है, कैचमेंट एरिया में ड्रेनेज पैटर्न हमने निकाला है कि पानी कैसे फ्लो हो रहा है इस वाटरशेड में, और वाटरशेड में पानी फ्लो होने के बाद हम उसको वाटर को स्टोर करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर शुड बी मेक। सो दिस इज द ड्रेनेज लाइन। तो यहाँ पे हमने चेक डैम्स प्रपोज किए, चेक डैम्स। यहाँ पे हमने CCT वी कॉल इट कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस, और ये डीप CCTs, इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है इसलिए वी कॉल इट डीप कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस। ये एरिया है जहां पे हमने प्लांटेशन प्रपोज किया है। सो आफ्टर लुकिंग टू द वाटरशेड ऑफ दैट एरिया, नेक्स्ट, दिस इज आल्सो अनदर एक्सरसाइज डन यूजिंग सैटेलाइट डेटा, जहां पे हमने ड्रेनेज पैटर्न निकाला है, हमने कौन कौन से वर्क्स करने चाहिए, कैसे हम इस एरिया का मॉइस्चर इंक्रीज करें, ट्रीज कैसे लगाएं। नेक्स्ट,
This is also one case study done. It is of Gariyaband in Chhattisgarh. This is the drainage line जिसका ये कैचमेंट एरिया निकाल के वाटरशेड ट्रीटमेंट करना है. नेक्स्ट, ये ड्रेनेज मैप निकाला. इट इज अवेलेबल बाय इसरो की भुवन वेबसाइट पे. दिस इज अवेलेबल. नेक्स्ट, ये ट्रिब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज का पैटर्न है कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती है. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री स्ट्रीम्स. नेक्स्ट, ये हमने कैचमेंट एरिया उसका डिलिनिएट किया है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका वाटरशेड जो डिलिनिएट किया है हमने, वी हैव इम्पोज्ड ऑन गूगल अर्थ. नेक्स्ट, दिस इज वन ऐप, क्लार्ट ऐप को यूज करके हमने देखा है कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटा इज बीनीथ, कि पानी कहां से जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स आर देयर. फॉर एग्जांपल, दिस ग्रीन लाइन इज गुड फॉर रिचार्जिंग. अगर आप रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑन ग्रीन लाइन तो उससे पानी जल्दी सीप होगा. ये जो येलो टाइप एरिया है, मॉडरेट रिचार्ज लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर के लिए एरिया प्रपोज किया. और ये जो रेड है, दिस इज यूज्ड फॉर सरफेस स्टोरेज. सो दिस टाइप ऑफ एप्स are available. You can use this app for designing structures. Next. So finally, what is the result is, we on the catchment map हमने ये specify कर दिया कि हमारे percolation tank जो surface storage के काम आएंगे और जो पानी को percolate करेंगे वो कौन से एरिया में होने चाहिए. तो वो ऊपर वाला एरिया दिखा है कि this is the area where we should make percolation tank. This is the area we should make the gabion structure. For example, these are the check dams with netting. And these are the check dams. So हम technology use करके we can find out the intervention which will be more successful. Next is another area where technology come into use is forest fire protection. So huge losses of forest is done by this forest fire and is a major source of carbon emission also. कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन का ये मेजर सोर्स है फॉरेस्ट फायर. तो फायर प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए भी वी यूज द टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट, सो दिस इज द बाय इसरो. इसरो डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट यूज करता है. मोडिस सैटेलाइट यूज करता है वो. और ये फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ फायर तो वो स्मोक को डिटेक्ट करेगा, हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करेगा और उससे डेटा इट इज टू सैटेलाइट. सैटेलाइट से वो अर्थ स्टेशन को डेटा आ रहा है. अर्थ स्टेशन को डेटा आने के बाद वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को जाएगा. फिर उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. फिर उसके बाद हमारे पास जो फील्ड स्टाफ है एट एवरी बीट लेवल, एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट विल बी सर्कुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ईमेल और एसएमएस. तो एसएमएस करने के बाद वी हैव टू गिव फीडबैक कि वेदर देयर इज एक्चुअल फायर और नॉट. और फायर भी है तो वो फॉरेस्ट के अंदर है या प्राइवेट लोगों को है. तो दिस इज द पर्पस ऑफ सेंडिंग द फीडबैक. नेक्स्ट, सो दिस टाइप ऑफ मैसेज कम्स एज ए फायर अलर्ट. So 3 numbers of fire detected in West Nashik division by the SNPP, their satellite sensor on this date at this time, and we can view the fire points by this, and we have to give feedback also whether there was actual fire or not, how much damage is done by this fire. Next, this is photograph of how our staff douse the fire in forest using the blower fire meters. This is the dress they use. Next. Another is use of technologies, drone, using drone for dispersal of seed balls or seeds. So this is all programmed by Bharat Petroleum. It was done in Nashik on 22nd July 2024. Next, this is the photograph launching the drone for dispersal of seeds, and mostly the local species of that area were dispersed. And almost 2 lakh seed balls were dispersed in this exercise. Next, this is one app developed for as a part of tree enumeration. For example, we have big heritage trees, good size trees, old trees. So there was an exercise to enumerate these data. What type of which species of trees we have? हमारे पास किस size के trees हैं? So this type of app was developed. Next. Another app is Maha Vanyajeev Bharpai. For example, there is from leopard, there is cattle kill. Cattle kill हुआ है या human death है. तो everything can be mentioned in this Maha Forest app.
ये ऐप है, इसके अंदर आप सारी डिटेल्स भर सकते हैं। सारे डिटेल्स के बाद कंपनसेशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन बाय गवर्नमेंट। अनदर इज टू कैप्चर द रियल टाइम डेटा इज वन शिवार ऐप। फॉर एग्जांपल हमने फॉरेस्ट के अंदर प्लांटेशन किया है, to see how much it is surviving. We put the data in one Shivar app. So हमारे डैशबोर्ड पे it is available every time कि what is the survival percentage. So ये मैंने सारी केस स्टडीज एरियाज बताई कि जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज करता है टेक्नोलॉजी के। अदर एरियाज आर आल्सो देयर व्हिच मुझे लगा कि because of paucity of time I have not captured. Another important notable development is in Tadoba, जहाँ पे हम human artificial intelligence को use करके we are detecting the presence of tigers and we are alerting the villagers so that they can take precautions कि leopard is moving around the villages so that they get a caution कि not to move out from their houses during that time. So apart from that, if you have some suggestions or you have doubt, you can ask me, and that's all from my side. The next slide though. So thank you. That's all from my side. If you have some time. If you have some doubts, clarification or suggestions, you're most welcome. Question. So we will do an account without understanding. Okay. You stand. Whatever efforts you capture in the county, where do you put them afterwards? Oh, in such cases, first we identify whether the leopard is problematic or not. Here we have a lot of exercise before capturing that leopard, and if we find out that leopard has come to human habitation by mistake, एक है कि intentionally it has come to that area और दूसरा है by mistake. In case of by mistake, we release them in nearby forest areas. And if it's a problematic leopard, suppose उसने human death किया, it's responsible, or it is injured, because injury में है तो they cannot capture it wild. So in those cases, we bring it to our center, that is wildlife hospitals, transit treatment center. उसमें अगर वो ठीक हो जाता है इंजर्ड लेपर्ड तो हम वापस उसको वाइल्ड में रिलीज करते हैं। अगर वहां भी ठीक नहीं होता है तो we take them to our rescue centers. For example, बोरीवली के अंदर हमारा रेस्क्यू सेंटर है, बोरीवाड़ा जू के अंदर हमारा नागपुर में रेस्क्यू सेंटर है। देयर आर डिफरेंट रेस्क्यू सेंटर्स जहां हम उनको फिर लाइफ टाइम के लिए हम वहां पे। So that's why we give so much precaution in identifying the leopard. We should not capture the wrong leopard. आपका कुछ doubt? You have to learn if wild animals attack humans, then how you isolate them. हाँ, आइसोलेट हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए करने के बाद हमारे पास काफी सारे तरीके हैं टू रेस्क्यू दैट, और हम उसके आगे अगर हमको लगता है कि इसको कभी ट्रीट नहीं किया जा सकता तो हम उसको हमेशा के लिए रेस्क्यू सेंटर्स पर। फॉर एग्जांपल कब्स भी अगर हम वी ट्राई टू रीयूनाइट, लेकिन अगर रीयूनाइट नहीं हो पाते तो लाइफ टाइम दे विल रेस्क्यू सेंटर्स। Problematic. तो भी रेस्क्यू सेंटर We have big facilities. नासिक में भी है, पुणे में भी बाउधन है, बाउधन के अंदर बड़ी फैसिलिटी है हमारे पास, बोरीवली में है, जुन्नर में है, तो हमारे पास है फैसिलिटी, तो वहां पे हम सर मेरा क्वेश्चन था कि जो एनिमल किलिंग्स होते हैं रोड पे, लाइक मैंने पढ़ा हुआ है व्हाइल कार्स पासिंग थ्रू एनी फॉरेस्ट लैंड द किलिंग्स हैपन, मतलब सॉर्ट ऑफ स्पीड ज्यादा रात है, तो हाउ डू यू प्लान ऑन कंट्रोलिंग दैट, और वो कैसे टैकल किया जाता है? उसके अंदर एक प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, और उसके बाद हम उसको क्यूरेटिव मेजर्स देते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमारा रहता है सिग्नल साइंस लगाना, वाइल्ड लाइफ सिग्नल साइंस देखे होंगे आपने, रोड पे लगे रहते हैं कि दिस इज वाइल्ड लाइफ मूविंग इन दिस एरिया, सो आपका स्पीड स्लो होना चाहिए। कुछ एरियाज में हम फॉर एग्जांपल इन कर्नाटक यू विल सी जो वाइल्ड लाइफ जो नेशनल हाईवे जो वाइल्ड लाइफ एरिया से पास हो रहे हैं वो रात को बंद ही हो जाते हैं, सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में हम उनको खोलते हैं। अंडमान में ऐसा है कि वो पूरा क्रॉसिंग ही बंद किया हुआ है, इन अर्ली मॉर्निंग ओनली विल अलाउ व्हीकल्स टू मूव। तो सिग्नल्स हम साइंस लगाते हैं, रोड साइड से साइंस लगाते हैं। उसके अलावा हम स्पीड ब्रेकर्स यूज करते हैं उस एरिया में स्पीड को माइल्ड करने के लिए। अगर हमारे पास
वो रेप्टाइल्स उस एरिया में ज्यादा है, तो हम ऊपर से कैनोपी की ऊपर से भी ब्रिज प्रोवाइड करते हैं, सो दैट स्नेक्स हो गया या फिर जो आर्बोरियल एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल मंकी, दे कैन पास। और हम अंडर पासेस बनाते हैं, आपने देखा होगा कन्वर्ट साइज के बड़े बड़े साइज के अंडर पासेस रहते हैं, वो वाइल्ड लाइफ को मूव होने के हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप समुद्री हाईवे पे देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े अंडर पासेस, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जहां पे कैप्चर हुआ है कि टाइगर्स आर रेगुलरली यूजिंग दोज अंडर पासेस टू क्रॉस द एरिया। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट करते हैं। और क्यूरेटिव मेजर्स ये है कि एज सुन एज हमको रिपोर्ट होता है, ये अगर होटल्स वेस्ट को डंप कर रहे हैं तो वी टेक एक्शन ऑन दीज होटलियर्स। इसके अलावा नेक्स्ट हम स्टेप लेते हैं कि अगर हमको रिपोर्ट हुआ है और वी कैन एक्ट, तो हम फॉरेस्ट पे जाके वो देखते हैं कि वो इंजर्ड लेपर्ड है, उसको ट्रीट करते हैं। क्योंकि लेपर्ड का क्या रहता है, जैसे ही अगर उसको डैश किया है तो इमीडिएटली वो फॉरेस्ट में भागते हैं। एंड फॉरेस्ट में वी कैन नॉट कैच देम बिकॉज इट्स नाइट एरिया, इट इज जस्ट ए गोल्डन आवर्स ऑफ 1 आवर मैक्सिमम। तो 1 घंटे के अंदर पकड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें हम कभी कभी ड्रोन्स का यूज करते हैं टू ट्रैक दैट लेपर्ड। Follow-up question. Is there any consequences for human beings if they are available? It's a schedule 1 animal. So if a human being kill a leopard, so it is a serious crime. It's more than 7 years of imprisonment is attached along with 25,000 of fine. So it's a very serious offense. The schedule 1 animal, leopard, tiger, lion, even vultures, they all are schedule 1 animals. So severe punishment is there for capturing even trying to capture that leopard. आपने उसको kill नहीं किया, वो kill वाला अलग चीज है. If you are trying to capture leopard or if you are trying to force leopard, for example, आपने बेट दिखा के ऐसा ट्राई किया है कि हमारे तरफ leopard आए, that is also a crime. समझो लेपर्ड गांव के ऊपर आ गया, उसने कोई आदमी को मार भी दिया और आदमी मर गए और आपने उसको कैप्चर कर लिया और फिर आपका रेस्क्यू सेंटर में उनको रखते हैं, तो उनको वापस आप छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हो? कभी छोड़ते हैं कि उसका अगर हमको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये लेपर्ड ने एक्चुअली ह्यूमन डेथ किया है तो हम उसको नहीं छोड़ते, बिकॉज लाइफ टाइम। लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए कि इसने, हम क्या करते हैं, उसका जो डेथ हुआ है उसके एरिया से वी कलेक्ट डीएनए, सलाइवा से वी कलेक्ट डीएनए और हम हैदराबाद के अंदर भेजते हैं डीएनए सैंपलिंग के लिए। तो डीएनए में जब आइडेंटिफाई हो जाता है कि दैट लेपर्ड वी हैव कैप्चर्ड और जो सलाइवा हमको मिला है विक्टिम के बॉडी से वो सेम है डीएनए, तो फिर हम उसको नहीं छोड़ते लाइफ, बिकॉज उसने ह्यूमन ब्लड टेस्ट किया है, सो वो 100% वापस ट्रैक करेगा। Would you like to ask anything? Thank you. Thank you.